हाँ हाँ प्लस एक दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 days दोनों क्राइटेरिया क्वालिफाई करना चाहिए। 15 को बनता है 5 प्लस 10 15 एक वो कनेक्ट करो इसका देख कहाँ लगा एक्सपर्टीज थोड़ा सा इजी हो जाता है। विकास जी तब ये सर जी सर बहुत सेवा है। आप इधर ही रह रहे हो आजकल आसपास? नहीं मैं तो दूर हूँ, लेकिन जहाँ पे आप जाओगे वहाँ तो हम पहुँचेंगे। और ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाओगे तो हम कैसे छोड़ देंगे। थैंक यू। एक छोटी सी मैप पे ब्रीफिंग है सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। warmly welcome honorable Union Minister of Health and Family Welfare to this Ladakh Hospital. This hospital is a 10,000 bedded hospital. Particular center is 10,000 bedded COVID care center. This center is the design was prepared with the help of one private institution, Hexia Healthcare. Dr. Garima is here. And one renowned architect of the city, Mr. Raman Sikka. And all detailings have been done, sir. The plan was conceived on 14th of June when Honorable Lieutenant Governor visited, sir. And on 26th of June, we were ready with 2,000 beds, sir. And 10,000 beds were already laid, but 2,000 beds we were ready to receive the patients, sir. And we started taking patients from 5th July onwards, sir, after many drills and rehearsals done by meticulously by the team of the ITBP, sir. And everything has been going very smooth, sir. The doctors of the ITBP, the security, and all infrastructure and maintenance and everything has been wonderful, sir. So the whole structure is in that way, sir, that we have total 22. This whole change structure is 1,700 into 700 square feet long, sir. Then, as you know, sir, 80 square feet we require for one bed area, so it comes to somewhere around 13,000 square feet. We took out the common areas and the travel and other places, sir. So roughly it became around 11 to 12,000 square feet, 10 to 12,000 bed facility available with us. We laid 10,000. Subsequently, we also got 2,000 additional beds, sir, which are more strong, sir. So now you have 12,000 in place, sir. Okay. At 10,000 we are right now we are giving, sir. Cardboard beds we received from Sleepwell, sir. Cardboard bed, mattresses and pillow. They donated us, sir. There are many charity organizations, sir, like Indian Railways also gave us the bed seats in 30,000 numbers, sir. The Jindals they gave us pulse oximeter and then this thermometer, sir. Then there were many organizations who gave us this computers, then printers, and all these facilities we created through various general donations. In fact, this hospital is linked with the for referral services with Safdarjung Hospital, LNJP, and Rajiv Gandhi Specialty Hospital. And pathology linkage is with one agency, sir, which puts the dispensary pathology in the government. And the all supply that has been linked with the TDO hospital. TDO hospital is the pharmacy, medical equipment and other things. A very well trained and expert doctor, sir, who has good experience in COVID care center management with the ITBP, sir. They are managing it thoroughly professionally. By now, almost a week has passed, and we have been able to take care of the patients in a most professional manner, sir. Only 4 patients we have been able to shift outside, refer outside, otherwise we are managing it here. And 113 is the today's outbreak. 113. 113. 123 submitted patient, 5 per patient. Five. So 118 आ गया सर. मतलब जैसे कार्डियक केस हो गया,
He's in charge medical superintendent, sir, here. So what is the mechanism like? Who refers you the patient? Who decides that this patient will go to the this particular COVID care Sir, center? like 11 district surveillance officers are there in each district, sir. So whenever one patient is populated in ICMR portal, or we do the rapid antigen test and we find that the person is positive, then a team of number one doctor immediately inspects him, examines him, and then finds whether the person is fit to be kept under home isolation or to be hospitalized or to be kept under primary this COVID care center. Simultaneously, a team of ANM visits his home and find out whether he can be isolated in home, whether those facilities are available or not. Then the decision is taken to shift the person to COVID care center. All districts have some smaller facilities of the COVID care center. So depending upon their availability in those, they refer it to Sardar Patel COVID care center. We have devised a format also, sir, in which they fill up the form. They send it prior to patient. Then IDPP confirms from here, from our control room, that please mobilize the patient immediately, and the patient is received at the reception and then allotted. So if there is no bed availability in the local districts, Sir. then only they refer the patient here, generally. Sir, there are with increasing number of patients, there is more demand of Sardar Patel COVID care center because it has there. So it is like many patients are saying that they don't want to be in a local center, they want to come They here. want to be Sardar. So if they say like that, you agree to that We agree proposal. with that. Sir, we are having 24 comorbid patients, 83 patients, males and 11 females. At present, we are having And 24 comorbid. And out of these 2,000, sir, 200 beds are oxygen concentrator. And we are using BiPAP, oxygen concentrator, oxygen cylinder, everything we are. Obviously. So how many beds have this oxygen facility? All? 10%, sir. 2,000 beds, sir. We only Basically, right now. there are Otherwise, 1,000. Please one at a time, I think. आप बता दीजिए, आप बता दीजिए. हाँ. 2,067 beds. at present. 2,000 beds have oxygen. 2,067. They are oxygen supported beds. No, 2,000. sir. It is CBC 18 and 200 BCS. 200 are oxygen supported. We consistently plan that 10% of the total beds will be taken. So right now you have made 2,000 beds functional. Huh? Sir, functions are 10,000, but we are taking patients. Functional in the sense that right now Yes. you have 123. So you are saying that initially we have these Sir. 2,000 which we have made absolutely ready. Sir, Rest can be Rest can made be ready as soon as there is the a need. demand is less. So out of those 2,000, 10%, that is about 200, they are oxygen supported, right? So how many doctors right now in this whole campus? Sir, may I say? Total doctors are 91. Okay. Sir, actually, what we have done, sir, we have done the scalability. So we have created a scale of 2,000 beds, and the scale is, sir, 320 doctors, medical personnel per shift, sir, per day, sir. That will be for 14 days, sir. And the shift is, sir, like there are total right now 20 enclosures. Each enclosure will have a capacity of 100 and more beds. And each enclosure will have a ratio of 1 doctor, 2 staff nurse, and 3 paramedics. Sir. So they are available around the clock? Around the clock, sir, this is 3 shift duty, sir. So for 8 hours, then we keep on changing the. Obviously, that duty system is there, but a doctor and a nurse and a paramedical yes, sir. staff is available round Yes, the sir, clock round for the the clock. care of every patient. Right? Yes, sir. Including some specialist doctors also, sir, for the DHCC, for the oxygenated support, sir. So how many days you are keeping the patient once he is coming here? After how many days? What is the protocol that you are following? Guidelines of 10 days. Yes. And plus the second criteria of 8 to 12 of 3 days. Same criteria like 10 days. If you don't have fever for last 3 days in that first 10 days, then without test you discharge them on the 10th day and ask them to quarantine at home for 7 days. Yes. That is what you are That is following. So how many have been discharged till now? So it started on 5th, sir. Achha, now, So now- naturally no one has been Another 3 discharged. days, sir. Another 3 days, then those asymptomatic ones we can consider. Okay, okay, no, it's perfectly fine. So you started on 5th of July. Good, thank you. We are proud of you. So what do you propose now? Where do we go from? But I would suggest that please, because I am a little worried about all of you also.
we have to maintain the social distancing and all. So maintaining the social distancing, I would like to see the important areas. So you tell me how to plan it. Sir, there's a request, the commandant in charge of the campus is going Okay. to give you a brief on the map of the security layout, sir. Okay. Please. Please. Sir, the total area given to us, the whole campus is 300 acres, and the hospital facilities where we have created is 70 acres. So we have divided the whole area into two parts, sir. One is the hot zone, sir. One is the buffer zone, sir. So the hospital, as such, sir, this is the hot zone, sir, which, as DM Saab has already briefed you, will be ultimately 10,000 beds, sir. Presently, we have 2,000 beds, sir. So we have two kinds of security, sir. One is the access control, sir. That is the external boundary of the camp, sir, where we have, this is the gate from which the patient enters, sir. He reports directly to C1, which is the reception and diffusion area, sir, where he is registered. After that, he moves to the ward, sir, through a e-rickshaw, sir. And in case he is coming in the ambulance exits from there, sir. And the medical staff comes from gate number G7A, sir. There are doffing areas here. They do their doffing, enter the ward, and they come out, do the donning, and exit from here. This gate we have kept for vendors, sir. Now, keeping in view this whole area is hot, sir, we have a mix of surface guards and watchtowers, sir. We have 6 static guards and 6 watchtowers to keep watch over the whole area. Plus, there is a monkey menace here also, sir. So we have to manage monkeys here also. Monkey menace, and we are getting a professional monkey catcher today, sir. He's already come. How are you managing that? लाठी वॉइस शोर मचा के भगा रहे हैं, सर. Bus, that's all. सर एक monkey catcher भी MCD से है। We have got a monkey catcher. कैसे करना है MCD? तो पॉकेट में आएगा तो उसको उधर पॉइंट फायर लीजिए, वो वाइट में डाल दीजिए। Sir, then we have a contingency arrangement also, sir. We have a QRT, quick तो उसकी आवाज़ वाले जो आते हैं ना, कुछ आजकल लगा देते हैं लंगूर की Yes, sir. आवाज़ें और वो सब आती है, क्या वो यू कैन ट्राई दैट Sir, और we are, yes, sir. ट्रीज वगैरह पे लगाते हैं ना, Yes, sir. प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीज ठीक करते हैं। Then we have for contingency, we have quick reaction teams, sir. We have two kinds of quick reaction teams, sir. One is outside, in case there is a contingency outside. In case there is a contingency inside the ward, sir. For example, a patient is misbehaving or getting riotous or trying to assault anybody or trying to run away, sir. We have our own corona positive boys and girls who Are in work the on- ward, sir. who have already suffered, so you have made them the Yes, volunteers. and they have volunteered to mix with them, and so you will see them also inside the ward. So how many of these volunteers are there? Right now we have 21 plus 6, 27, 28, sir. That's a good idea. We have a mix of 2 females, 5 males, and 1 commander, sir. A total of 8 is QRT is ready all the time, sir, in 3 shifts, sir. Okay. So in case there is any problem, they immediately enter. For example, there was a small fire incident last night, sir. Short Small circuit. fire? No fire, sir. There was a short circuit, sir. Okay. So they went and managed it, sir. So they are ready for any contingency, sir. That's it for the सर एक बार मैं XCR को थोड़ा सा बोलूँगा। इसकी जरूरत नहीं है। रहने दो, रहने दो, चाय वगैरह डॉक्टर गरिमा रहने दो, कोई जरूरत नहीं। सर डॉक्टर गरिमा is from XCR Healthcare. She helps us in designing, so she will give the minute detail of the hospital. She has been a tremendous doctor. Anything and everything we consult her and she is readily available to us free of cost. You are It's been a an pleasure architect? to associate, sir. Are you an architect? I'm a doctor, sir. I've run hospitals all along and done masters in hospital administration thereafter. So the first thing when we went to the drawing board was, as ITBP has just shown, we planned the patient flow and the staff flow separately. The hot zones and the cold zones were segregated. The cold zones essentially for us were from the backside, wherein the staff would enter, the vendors would enter. We did not want cross-contamination. The hot zones were in this way, so all the patient entry and the dirty, if I can say, waste movement was supposed to be from here. When we put down to the drawing board, we realized that this area is pretty vast for us to cover. So in the first phase, we wanted to take up 2,000 beds. We
split it up into two parts. The nursing station in between each of these two pillars. So this would cover 100 and 100. So each nursing station was to cover 200 beds. This nursing station was to cover these two. So that way you have appropriate cover. The more vulnerable patients were supposed to be on this side, which is proximal to the nursing station, and the distal ones were the relatively stable one. When we look at the patient flow, intention was for them to come from the gate over here, which was shown by ITBT. They would enter. Here they would enter into the reception zone. At the reception zone, they have the necessary script which is provided to the person who's going to be admitting them. SMS would have already been sent to say this patient is arriving. There is a resuscitation room in case the patient is obviously dyspneic, so that they could assess the patient in case he is into the moderate category already, not the mild category. Immediately he will be put into the ambulance and moved to the higher referral center. So the referral to higher center protocols were also established with ITBP over here. From here then the patient would be directed with the kit to the toilets, wherein they would wear their gowns, they would get the kit. With this they will move to the appropriate nursing station. There the face sheet with the armband, they will be identified, appropriate bed given if there is no oxygenation required. Here they will be maintained for the entire duration with the guidance of, which are the wash areas. So this is our dirty area, so to say, for us. So the movement of the patient is confined to this region. Doctors, on the other hand, move from the gates over here. They get into their donning area. From the donning, they move into their workspaces over here. Every time they have to go back, the entire doffing process has to be followed again. There's a complete segregation so that there is no cross-contamination of sorts. And in this, what we did also plan and we executed was a resuscitation area. Right now, because this part is not being utilized, so Sir. it's only about this Only part. this. We have quadrant, sir. This- Five units, 5 vertical columns. We have Yeah. quadrant. This part is covered, sir. So this part is There active is for us. also a bed. There is also a screen between the Between the nursing All station all, and every nurse, even if she has to go to the last Still, yes, sir. this thing, she will pass through all these wards and then go to all the last. corridors, sir, and they're in complete All- PPE. There is a corridor. There is a corridor, sir. There's a There is walkway. This red path is the This- walkway. This is the corridor. Absolutely, sir. And these are cordoned off. Each one of these is semi-segregated. So this is the vulnerable So she side. will walk into the corridor and enter into the specific Absolutely, sir. chamber. Yeah. Each of these houses 116 beds, sir. Okay. Yeah. So right now it is like 4 rows that have been occupied. Yeah. 5 this side, 5 this side. Yeah. Five. Yeah. So 2000 and all, sir. And between each 4 we have 2 resuscitation beds in case the patient collapses. And there is a code blue which is announced. Then the nursing station from here will move in, and the patient will be resuscitated not with the other patients because there will be aerosol generation. It is on this in this lane. Yes, Which sir. is the corridor. Yes, sir. Few beds are earmarked. We have kept some space over here, wherein you have resuscitation beds, you have aerosol maintenance, so that others and the staff won't get affected by it. You took how many days? 10 days to 10 days. complete it? Yes. Yes, ma'am. Total 10 days? We started on 15th, sir. And Tremendous, then sir. we could complete it on 26th. Right, sir. 25th evening we, went. Even the air conditioning, sir, has been planned in such a manner that the gradient flows from here outside to this zone, which is the dirty zone. The number of toilets in the washrooms, they are as per the standards. Even the patient movement, the signages, the clearances. So for these 50 people in this, no, but 116, sir, per. 100. Yes. More than 100, sir. 116. 100 to 116, sir. So what is the toilet arrangement for them? So it is, a- so these are the toilet complexes for the patients. The staff goes that side. So staff, there is no Sir, we have in this contamination. whole campus, sir, we already had around 570 toilets, sir, and 350 washing areas. Okay. We increased the number with the help of BUSIP, sir. So we put, right now we have put around 100 toilet, temporary toilets, because this are less. But we are in the process of increasing up to 500. Every patient is Sir. now then coming back to Next, this we have 500. Here, sir. Here, this and this. This is what they use. is coming out to another From this exit. walkway and into this one. So this is the dirty zone, sir, for us. So we allow movement And there here. is a shade also, sir, for the accessing these toilets, there is a shade. And it is covered such that because of the rains and all,
there is as such. We have created tests. Even from a pharmacy perspective, sir, we've got the inventory over here which dispenses to the nursing stations. Good. You are a medical doctor? I'm a medical doctor, sir. Good. He has done remarkable job. Thank you. कौन सा कॉलेज किए हैं? Sorry, sir. Which college? Sir, this is Government Medical College, Jammu. I passed out from there. सर ये बड़ा लग रहा है किचन इतना सारा स्टाफ है उनके लिए है तो आप पहले तो आए होंगे। DPCC का एक NGT का डायरेक्शन आया हुआ है सर। DPCC का वो एक वो था, बल्कि मैंने ही सजेस्ट किया था कि बिकॉज देन देयर आर टू मेनी थिंग्स कि उसको पहले डाल के जो है वहाँ पे डाल के डिसइंफेक्ट करें, फिर उसके बाद इन्सिनरेट करना है, दैट विल गिव द कार्बन, हियर इज विल गिव द डायरेक्शन इंश्योरेंस हो। तो मेनू है भी सर दाल है सर ये दोनों चने हैं सर ये सब्जी है सर राइस 4 चपाती एंड स्पून The dietitians of ITBP has given the menu. सर काढ़ा से शुरू होता है सर, शाम को हल्दी से खत्म करते हैं एंड इन बिटवीन मील सर एंड देन हाँ सर पीरेंगे और प्रोटेक्टेड रखो।
start evaluating like this is big so effectively we are working everyone team led by Mr. P.P. Sharma who started taking the inventory in and out the stocks as well as in what supply to the hospitals and other things and that is being done meticulously. सर इंडियन उपाध्याय हॉस्पिटल से सारी मेडिकल सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमारा डोनेशन है स्टोरेज बेसिकली नीचे है सर also have him here. MSc, yes, he is MD LSC का myself psychiatric CPU on the doctor area. main storage downstairs. Sir, you can go to downstairs. There is a men's. He wants us to manage for also. Donated for. We have got how many apply now? For the 200 computers and around 100 tablets, Android tablets. And we are in process to receive more. And people are so ready to this mask and everything is we are getting in huge quantity even beyond our use capacity. Nestle has given sir coffee machine. कितनी आ गई है अभी तक 20 है 20 have come. Nestle का है सर ये कॉफ़ी का and they have given coffee dispenser with coffee also sir. 20 they have given as of now and we would they are ready to scale it as many 200 sir. Yeah sir और इसके ऊपर भी 1000 additional हमें SBI is giving sir. But stethoscope in donation. ये हॉस्पिटल में दे देंगे क्योंकि अभी तो यही लग रहा है सर आप So for everything that we have asked for donation, there is a return plan. ये कौन सी सर कानपुर से सर Z1 पैरा सर ये W5 सर मैं सर सर डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर DM मिश्रा सर यस सर नहीं सर एंट्री सर एडवांस लास्ट था उसके बाद सर जी सर अभी तो सर IJ तक से पहुँच गया सर IJ J2 ये सब पहुँच गया ये ब्लास्ट में था क्लास सर 6.5
उसके ऊपर ऊपर आएगा सर। हाँ सर, पूरा ऊपर आएगा पूरा। हाँ मेरा फोन दे देता उसका वो फायदा मिला सर कि इनको डिज़ाइन करने में। सर इतना अच्छा क्वालिटी दिया है क्योंकि उसे सामने सब कोऑर्डिनेट किया इतनी क्वालिटी इज वेरी गुड। सर है ना सर आईडी सर चलो आगे सर मैं यहीं रुका हूँ। ये नहीं है गलत तरीके सर सर यहीं चलो फैक्ट्री है आ जाओ। सर इसका यूज मैं ज्वाइन 10,000 की जब डिजाइनिंग कर रहे थे सर दूसरा महीने शुरू में ही था। अब डॉक्टर ले जाना है डॉक्टर 2000 के बाद का पार्टीशन है सर। इस साइड रेडी सर अभी सर सामने कंस्ट्रक्शन में सर पेशेंट में ज़्यादा नहीं है उस साल का उससे अच्छा में ज़्यादा है ये क्या रिलीज नहीं हुई सर। जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेंगे सर दोनों अपने कंप्यूटर लगा देंगे सर। और 2 साल की मैंने वारंटी दी है। अभी जो कुछ नहीं होगा सर। वाइड स्टडी है और ऊपर जो स्टेशन से सर उसमें 25% के करीब हमने पैसे दे रखा है कि जैसे हम ये एक साथ की वायरल लोड बढ़ेगा और मतलब सैनिटाइज कंडीशन करेंगे। वो डाला है सर 10,000 तक पूरा ही सॉफ्टवेयर पे चला रहे हैं और टैबलेट बेस जैसा तक नहीं चलाया ठीक है सर। तो ये पार्टीशनिंग राधा स्वामी ने यूज कर सकती है और फिर नीचे की जो फिनाइल फ्लोरिंग हाँ सर अच्छा है लग रहा है। हाँ ठीक है तो एक ही बात है फिर घर चले जाओगे। कहाँ से आए? CRPF ग्रेटर नोएडा। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है सर
अच्छी आती है? खाना वगैरह अच्छा लगता है? खाना अच्छा लगता है? खाना अच्छा लगता है सर। कल हमने सर कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। सर ये सारे सर कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है सर। खाना वगैरह ठीक है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। टॉयलेट वगैरह साफ है? खाना वगैरह ठीक है? जी सर, जी सर। इसमें ना ये ब्लू वाला सर ये लाइब्रेरी है सर, लाइब्रेरी का भी और कुछ कपड़े वगैरह टांगने की प्रॉब्लम आ रही थी सर, ये सर सर डब्बा है सर, वो जो इनके जिनसे कपड़े होते हैं सर, डब्बे में उधर डाल देते हैं सारा। सर यहाँ से डिफरेंट स्टेशन बांटे हैं सर, डेडिकेटेड सेंटर है, जो भी सब पेशेंट ज़्यादा ही लेकर उसमें रखते हैं, जो भी सर जो नॉर्मल यहाँ पे सर, यहाँ पे अपने हाँ सब मिल रहा है, ठीक है सर। हाँ बाकी सर नर्सिंग स्टेशन सर इधर में सर, यहाँ पे सब अपने सर स्पेशलिस्ट बैठते हैं। ऑलरेडी इंफेक्टेड है यहाँ पे, आप अगर ऐसे देखेंगे तो हम लगा देंगे पूरा एरिया जितना है। उन्होंने तो बेड भी दिया है, हॉस्पिटल भी दिया है, किलो भी दिया है, साथ में उन्होंने 4000 पेशेंट राउंड भी किया है। एंड उसके लिए जरूरी सर कि आप जो भी बोलोगे हम कर देंगे। सर आज आपने इंस्पेक्शन देखा, क्या क्या तैयारियां देखी आपने? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड के मरीज़ों की केयर के लिए जो सेंटर
भारत की राजधानी दिल्ली में बनाया गया है। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, जिसमें 10 से 12 हज़ार तक मरीज़ों के रहने की, उनके इलाज की सब प्रकार की समुचित व्यवस्थाएं हैं। उसको बहुत विस्तार से मैंने आज निरीक्षण किया है। कई मरीज़ों से भी जो यहाँ पर भर्ती हो चुके हैं, उनसे भी जाकर बातचीत की है। उनसे उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है इसकी जानकारी ली है। उनसे यहाँ के भोजन के बारे में, यहाँ के टॉयलेट्स के बारे में, यहाँ के डॉक्टरों के बारे में, नर्सिस के बारे में, सपोर्ट स्टाफ के बारे में और दूसरी सब सुविधाओं के बारे में बात की है। सबने संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की है। सब काफ़ी उत्साहित हैं, सबका मनोबल बहुत ऊंचा है। मैं आज यहाँ निरीक्षण करने के बाद जितने भी यहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो हमारे सरकार के प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, उनके सभी सहयोगी हैं, यहाँ पर इसकी स्थापना में और इसको चलाने में जो हमारी ITBP है और जो राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल है, इसके सभी जितने भी अधिकारी हैं, इसके भी जितने भी सब डॉक्टर्स हैं, उनको भी मैं सब, और दिल्ली के प्रशासन के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए जितने लोग हैं, और विशेष रूप से जो यहाँ पर जिन्होंने इसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए सभी वॉलंटियर्स, उन सबको हृदय से नमन भी करता हूँ। उनको सबको हृदय से बहुत बधाई भी देता हूँ। ये जो सेंटर है, ये हमारे देश के लिए नहीं अपितु दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। 11 दिन के अंदर इसका 10 से 11 दिन के अंदर इसका निर्माण हुआ। ये जानकर भी मुझे खुशी हुई कि यहाँ लगभग 2-3 दर्जन ऐसे वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एरिया में, जिनको अगर कोविड के मरीज़ को गला भी लगाना पड़ जाए किसी कारण से, तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। उनको कोविड पहले हुआ, लेकिन उन्होंने अपना बाकी समय यहाँ वॉलंटियर्स के रूप में डेडिकेट करने के लिए दिया। सब प्रकार की खाने की बहुत साफ़ सुथरी व्यवस्था की गई है। साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स बनाए गए हैं, नर्सिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, डॉक्टरों के लिए बैठने के स्थान बनाए गए हैं, मरीज़ों के लिए कंफर्टेबल ऐसे अनूठे बेड्स बनाए गए हैं जो कि कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पर हैं, उन पर मैट्रेसेस हैं, और वो 300 किलो का वज़न जो है वो झेल सकते हैं आराम से। हमने स्वयं उसके ऊपर बैठकर 2-3 लोगों के साथ देखा, और उसकी गारंटी भी ली गई है कि 2-3 साल तक उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मैं ये सारी व्यवस्थाओं के लिए सभी संबंधित पक्षों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आपने पेशेंट से बात करी, यहाँ के स्टाफ से बात करी, ऐसे टाइम में जब कई पेशेंट जो है सुसाइड कर रहे हैं और स्टाफ में थोड़ा डर है, यहाँ की मनोस्थिति स्टाफ की कैसी है, पेशेंट की कैसी है? मैंने जैसा शुरू में ही कहा कि पेशेंट्स भी सब उत्साह में हैं, उनका मनोबल बहुत हाई है, और हमारे सभी जितने भी प्रकार के यहाँ पर अधिकारी, कर्मचारी, मेडिकल प्रोफेशनल्स सभी लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, सभी लोग बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो खुशी की बात यह है कि इसको बनाने के लिए जो मेजॉरिटी जो उसके लिए व्यवस्था हुई है वो डोनेशंस के माध्यम से हुई है। समाज की बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े संवेदनशील लोग, बड़े बड़े करुणा भाव से भरे हुए संगठन, वो लगातार यहाँ डोनेशंस कर रहे हैं। मैंने स्टोर्स में भी जाकर देखा कि किस प्रकार से
दवाई से लेकर और सब प्रकार की जो चीज़ें हो सकती हैं, पीपीई किट और N95 मास्क तो साधारणतः सरकार की व्यवस्था से भी आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जितने प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, बेड्स से लेकर और दूसरी सभी आवश्यक जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर डोनेट की गई हैं। तो जितने भी दानदाता हैं उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, उन सबको भी बहुत शुभकामना देता हूँ। आज बहुत हमारे लिए संतोष की बात है कि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद हमारी दुनिया के अंदर जो फैटेलिटी रेट है वो सबसे कम है। आज शायद 2.66 के करीब हो गया, हर रोज़ पिछले दिन से कम होता जाता है। और हमारा जो रिकवरी रेट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग 63% अभी हो गया है। और आज सारे देश में लगभग 1194 लेबॉर्ट्रीज़ के माध्यम से हर रोज़ 2,80,85 हज़ार तक हम टेस्ट रोज़ कर रहे हैं। आज हमारी 3.25 लाख रोज़ टेस्ट करने की कैपेसिटी है, लेकिन इसको हम आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे 1 मिलियन तक लेकर जाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। जो डबलिंग रेट लॉकडाउन के पहले 3 दिन होता था वो आज हमारा 21 दिन हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सारा देश, सारे हमारे डॉक्टर्स, सारे हमारे स्वास्थ्यकर्मी और समाज के सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमें बहुत ही जल्दी इसमें निर्णायक विजय प्राप्त होगी। मैं सभी देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। एक आखिरी सवाल, पीएम ने कल मीटिंग ली थी कोविड पे ही, उन्होंने बोला था दिल्ली का मॉडल जो है दिल्ली एनसीआर में लगाना चाहिए और इसमें भी केंद्र की निगरानी होनी चाहिए, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का अधिकारी। देखिए, प्रधानमंत्री जी खाली दिल्ली नहीं, प्रधानमंत्री जी देश के एक एक कोने में होने वाली कोविड से जुड़ी हुई घटना को भी उतनी ही गंभीरता से मॉनिटर कर रहे हैं जितना वो सारे देश की अन्य समस्याओं को मॉनिटर करते हैं। दिल्ली को भी, जब दिल्ली आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तब उन्होंने गृह मंत्री जी को और हमारे को आदेश दिया कि दिल्ली के अंदर हम लोग एक्टिव इंटरवेंशन करें। तो दिल्ली सरकार के सपोर्ट के लिए हम लोगों ने अपने सारे अधिकारियों को, अपने सारे एक्सपर्ट्स को लगाया और आपने देखा कि 4 गुना टेस्टिंग हो गई दिल्ली के अंदर। इतना बड़ा सीरो सर्वे हो गया, कंटेनमेंट जोन जो है 200 से 450-500 के करीब हो गए। और सब प्रकार से जो टेस्टिंग के साथ साथ जो सर्वेलेंस से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, एंटीजन टेस्ट है, ये सारी चीज़ें जब बढ़ाई तो धीरे धीरे हमें दिल्ली की स्थिति में सुधार दिख रहा है। एनसीआर के ऊपर भी उसी तरह से काम हो रहा है। सारे देश में जहाँ जहाँ ज़्यादा तकलीफ़ है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उनको और ज़्यादा हैंड होल्डिंग की जा रही है, उनकी और ज़्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को निश्चित रूप से आने वाले समय में निर्णायक सफलता मिलेगी। Keep it broad canvas. आज का नहीं, first week of January में we give that emphasis that you have had a focus from the very good beginning. मैं यहाँ सरदार पटेल कोविड केयर फैसिलिटी और हॉस्पिटल में हूँ,
जो दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर अस्पताल है। 10,200 बेड हैं इसमें। चाइना ने बेड अस्पताल बनाया था 10,000 बेड का, हिंदुस्तान उससे आगे गया। मेरे साथ हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और भारत के विज्ञान मंत्री भी हैं। और आप देख सकते हैं उन्होंने BSF का कैप पहन रखा है, ITBP का कैप पहन रखा है और वो N95 मास्क लगा के बात कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारा जो कोविड-19 से बैटल है वो और देशों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और काफ़ी पहले शुरू हुआ था। देखिए पल्लव जी, आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है इसके बारे में सबसे पहले चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 7 जनवरी को बताया था और मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो किसी भी डिज़ीज़ आउटब्रेक के संदर्भ में फैसले करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनकी मीटिंग 24 घंटे से कम समय के अंदर 8 जनवरी को बुला ली थी। और आप जानते हैं कि उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर सारे देश के लिए डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बन गई थी, डिटेल्ड एडवाइजरीज बन गई थी। देश में कैसे कम्युनिटी सर्वेलेंस करना है वो तय हो गया था। एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो हमारे सी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर, लैंड बॉर्डर्स के ऊपर कैसे पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस करना है, वो सारी चीज़ें तय हो गई थी। और फिर सारा देश एक्टिवेट हो गया। इतनी सारी 30 जनवरी को पहला केस केरल में आया था, 1 फरवरी को दूसरा केस आया। शायद उसी समय में प्रधानमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया। आज उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी 18-19 मीटिंग्स हो चुकी हैं और लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके सुपरविजन में एक के बाद एक, जिसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव, ग्रेडेड रिस्पांस, इसको हमने लगातार भारत में फॉलो किया है, रेगुलर मॉनिटरिंग की है। प्रधानमंत्री जी की चीफ मिनिस्टर लेवल पे, हमारी स्वास्थ्य मंत्री लेवल पर, कैबिनेट सेक्रेटरी की, हेल्थ सेक्रेटरी की, सारे अधिकारियों के लेवल पर हमने इवन जो देश में ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं वहाँ के DMs तक से भी डायरेक्ट इंटरेक्शन किया। आपने देखा ज़रूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सब लोगों के लिए जनता कर्फ्यू जैसा इनोवेटिव कंसेप्ट देश के सामने रखा, देश की मानसिकता तैयार की, लॉकडाउन किया। लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और उसके बाद हिम्मत करके अनलॉक 1 और अनलॉक 2 भी किया। बहुत बड़ी समस्याएं बीच में थी, तबलीगी की समस्या आई, माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या आई, बाद में लाखों की तादाद में, इनफैक्ट मिलियंस की तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर वापस भेजने का एक कितना बड़ा प्रयास हुआ। उसके लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई। ये सारा कुछ करते करते और इस सारी यात्रा में याद करें, ये वायरस और इसके लिए वायरस का टेस्ट, इसका स्वैब अमेरिका जाया करता था कुछ वर्ष पहले तक। हमारे पास एक लेबॉर्ट्री थी और हमने किस प्रकार से अप्रैल के महीने में अगर आप ख्याल करेंगे तो शायद हम 5-6 हज़ार टेस्ट रोज़ करते थे। आज हमारे पास देश में 1194 लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहां हम इस वायरस के लिए टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट भी सब प्रकार के कर रहे हैं, RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं, एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं। और आज एक दिन में 2,80,000 85,000 तक टेस्ट हो रहे हैं। 4.25 लाख हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी हो गई। और लेकिन हमने अभी रुके नहीं हैं, हम 1 मिलियन टेस्ट रोज़ करने की अपनी कैपेसिटी को लगातार तेज़ी से विकसित कर रहे हैं। हम सर, आप जाने जाते हैं भारत से एक वायरस जो हमने भगाया, पोलियो वायरस का, पोलियो वायरस को भगाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम ये कोरोना पे जीत पाएंगे जल्दी? देखिए, अपनी तरफ से जितने प्रयास हो सकते हैं वो सारे कुछ हम कर रहे हैं।
भारत को बहुत बड़ा अनुभव है। हमने चेचक को जड़ से समाप्त किया, दुनिया में कंट्रीब्यूशन किया। हम लोगों ने पोलियो को जड़ से समाप्त किया। 2014 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे याद है जब इबोला आया दुनिया में, हमने भारत में इबोला को घुसने नहीं दिया। पिछले वर्ष नीपा जब केरल में आया, हमने उसको केरल से बाहर नहीं निकलने दिया। और आज कोरोना वायरस के मामले में भी जब दुनिया में हम दूसरे नंबर की आबादी का मुल्क हैं, हमारी 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, हमारा पर मिलियन केसेस का नंबर, पर मिलियन डेथ्स का नंबर दुनिया में सबसे कम है। सबसे कम हमारा मोर्टेलिटी रेट 2.66 और हमारा जो रिकवरी रेट है वो 63% है। डबलिंग रेट जो है वो 3 से बढ़कर 21 दिन हो गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लगातार मार्गदर्शन में, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट्स के सपोर्ट से हमारे सर्वेलेंस वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारी नर्सेज और हमारे सिक्योरिटी के लोग, सभी हमारे जो अभी आज जहाँ पर हम आए हैं यहाँ देख रहे हैं आपकी किस प्रकार से हमारे ITBP के लोग जो है, हमारी सीमा सुरक्षा के जो सशस्त्र दल के लोग हैं, ये सारे लोग, पुलिस हो, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है। और आपके जैसे जर्नलिस्ट, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया कोरोना वॉरियर्स के रूप में, सड़क पर आकर जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोरोना वायरस का सामना किया। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है, इसमें भारत को निश्चित रूप से आने वाले समय में एक निर्णायक विजय प्राप्त होगी। आप आज देख रहे हैं जहां आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 10,000 से 12,000 के बीच में विकसित की गई है। यहाँ सब प्रकार की आधुनिक सुविधाएं हैं और इस कैपेसिटी को बनाने में सिर्फ 10 दिन का समय लगा है। और इसको बनाने के लिए जितने साधन जुटाए गए वो सब समाज के लोगों ने उनको डोनेट किया है। राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए वॉलंटियर्स यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ITBP के और हमारे से जो सीमा सुरक्षा सशस्त्र सीमा सुरक्षा दल है, BSF के, इनके सब के जो है डॉक्टर्स हैं, दूसरे जो लोग हैं, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, उसके प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी लोग जो है बहुत ही जिसे कहते हैं कि हृदय से, मन से, आत्मा से यहाँ पर काम कर रहे हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। सर केस क्यों बढ़ रहे हैं? केस देखिए घट नहीं रहे, केस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आपको मैंने अभी बताया कि ये जो केसेस हैं, हम तो खुद चाह रहे हैं, हम इतनी तेज़ी से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अभी दिल्ली शहर की बात करें तो कुछ दिन पहले तक 5,000 टेस्ट होते थे, कल एक दिन पहले 22,000 टेस्ट हुए। हम तो चाहते हैं, हमारी शुरू से स्ट्रैटेजी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस डिटेक्ट होने चाहिए, अर्ली डिटेक्ट होने चाहिए, तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। तुरंत अगर अस्पताल में या किसी हेल्थ सेंटर में कोविड के या कोविड केयर सेंटर में उन्हें जाना है या क्वारंटाइन सेंटर में जाना है, वहाँ उनको शिफ्ट करना चाहिए ताकि अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो और हमारी मोर्टेलिटी नीचे रहे। आज दुनिया में सबसे कम हमारी मोर्टेलिटी है, 3 से भी कम हो गई और हमारा लक्ष्य है कि इसको 1 से भी कम हम ले जाना चाहते हैं। यही हम सारे देश के अंदर लोगों को बता रहे हैं। इन नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 8 लाख के करीब केसेस हुए हैं, 5 लाख तो ठीक होकर घर जा चुके हैं, बाकी 3 लाख के अंदर भी अधिकांश जो है वो ठीक होकर घर जाने की स्थिति के अंदर जो है ऑन रोड टू रिकवरी हैं। और इसको कंपेयर करिए वर्ल्ड के एवरेज से, अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के, इटली के, स्पेन के, इन ब्राज़ील के, इन देशों के एवरेज से, तो आप देखेंगे कि भारत का इतना बड़ा देश होते हुए भी नंबर बहुत कम है। आप सर स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद ENT सर्जन रहे हैं, आपने बहुत ढेर सारे पैंडेमिक देखे हैं। मैंने भी 1994 के प्लेग के बाद से हर पैंडेमिक कवर किया है। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ऑफ कवरिंग डिफरेंट वायरल डिजीज़ेस, क्या वो भारत को आज काम आया है? निश्चित रूप से देखिए, भारत के पास एक प्रकार से अद्भुत पोटेंशियल है, क्षमता है। अभी हमारा जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा विकसित है सारे देश में। हमारे जो सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं, हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं,
हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त किया है। और ख़ासकर पोलियो को जड़ से समाप्त करते करते ये सर्वेलेंस सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पर विकसित हुआ। आपने प्लेग की बात की, प्लेग को मुझे खुद हैंडल करने का 1994 में मौका मिला। मुझे 1996 में डेंगू को हैंडल करने का मौका मिला। मुझे और भी कई बीमारियों को 98 में एपिडेमिक ड्रॉप्सी जैसी बीमारी को भी, जो कि दूसरे प्रकार की बीमारी वाली जो थी, दूसरे प्रकार की बीमारी थी, उसको हैंडल करने का इस देश ने स्वाइन फ्लू को, इबोला को और नीपा, जाइका, कितने वायरसेस को इसने हैंडल किया है, बहुत मुस्तैदी से हैंडल किया है। तो स्वाभाविक है जो हमारी जो एक आंतरिक क्षमता है, हमारी योग्यता है, हमारा पोटेंशियल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश में समाज के अंदर एक कर्तव्य परायणता का भाव है। जब ज़रूरत होती है तो सारा का सारा समाज खड़ा हो जाता है, सारा का सारा समाज जो है यूनाइट हो जाता है। वो सारी चीज़ों का भारत को निश्चित रूप से लाभ मिला है। और फिर हमने दुनिया में सबसे पहले इस चीज़ को एंटिसिपेट करके उसके खिलाफ जो युद्ध है उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से लड़ने की कोशिश की है। खाली अभी डॉक्टर्स नहीं, हमारे वैज्ञानिक भी इस सारे काम में लगे हैं, हमारे सारे साइंस मिनिस्ट्रीज़ हमारी लगी हैं, सारा हमारा ICMR लगा है। आज जो हमारी क्षमता पहले नहीं थी, हमारे पास हम PPE किट तक नहीं बनाते थे, आज दुनिया को हम PPE किट एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। सब प्रकार के जो किट्स हैं टेस्ट करने के, चाहे वो RT-PCR किट्स हों, चाहे एलाइजा हो, चाहे वो दूसरे जो हमारे एंटीजन टेस्ट के किट हों, ये सब भारत के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा समझ लीजिए कंपनियों को या किट बनाने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम लोगों ने वैलिडेट किया है इस बीच में। और ये सारी क्षमताएं भारत ने इसी दौरान जो है विकसित की हैं। आज वैक्सीन को बनाने के लिए भी भारत के अंदर प्रयास हो रहा है, ड्रग की डिस्कवरी के लिए प्रयास हो रहा है, पुरानी ड्रग्स को रीपर्पस करके यूज़ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हर दिशा में सब लोग मिलकर लगे हैं और इसी के कारण भारत को इतनी ऐतिहासिक सफलता मिली है जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी तारीफ़ कर रहा है। उसने लगातार, और इतने बड़े देश में आज तक सब प्रकार के लोगों ने बहुत बीच में सोचा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन आज तक भी देश के अंदर कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी सफलता की बात है। सर, आप विज्ञान मंत्री भी हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बढ़ाने की मुहिम चल रही है। 2 कंपनियों ने अपना इंडिजिनस वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया है। आपको विज्ञान मंत्री के तौर पे कितनी उम्मीद है उन वैक्सीन से और कब तक उम्मीद करी जा सकती है सर? देखिए, अगर कोई उम्मीद ना करे, कोई उसके लिए प्रयास ना करे, कोई उसके लिए कर्म ना करे, तब तो कोई उसका मतलब नहीं होता। उम्मीद और कर्म और भगवान पर भरोसा करके ही इस प्रकार के सात्विक काम किए जाते हैं। हमारे देश में कई लोग इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, दुनिया में भी लोग प्रयास कर रहे हैं। 2 हमारे इंडिजिनस जो भारत की कंपनियां हैं वो काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ जो है पहुंच रही हैं। तो निश्चित रूप से हमारी भगवान से प्रार्थना और कामना यही है कि जितना जल्दी उनको सफलता मिल सकती है मिलनी चाहिए। अब इसके बारे में पहले से तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्योंकि ये ह्यूमन ट्रायल्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, एक साइंटिफिक प्रक्रियाएं हैं, इनमें समय लगता है। लेकिन सबको एक प्रकार से उत्साह है कि हम जितनी जल्दी भारत के या दुनिया के लोगों के लिए वैक्सीन को खोज करके दें ताकि वो वैक्सीन जो है लोगों के प्राण की रक्षा कर सके, उनकी जैसे कहते हैं इम्यूनिटी को डेवलप कर सके इस बीमारी के ख़िलाफ़। तो सब लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपकी मंत्रालय के तरफ से और भारत की जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से तो कोई अड़ंगा नहीं लगाया जाएगा ये वैक्सीन में? किसी भी तरह का, देखिए हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से काम कर रही हैं। जितने प्रकार के क्लियरेंसेस देने हैं बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए क्वालिटी के साथ, वो चाहे किट्स के वैलिडेशन का काम हो, चाहे नई दवाओं को भारत में मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो है एक प्रकार से परमिशन देने का काम हो, या और भी जितने भी संबंधित काम हैं वैक्सीन्स के बारे में, ट्रायल्स के बारे में, तो सब में हमारी जो देश की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो भी बहुत प्रैग्मेटिक तरीके से काम कर रही हैं, बहुत विजन के साथ काम कर रही हैं। और किसी भी प्रकार की ब्यूरोक्रेसी के कारण जो देश हित, समाज हित और लोक हित का काम है वो किसी भी तरह से रुके नहीं।
यही हमारा प्रयास है, यही हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज़ का प्रयास है, यही हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रयास है, यही हमारे ICMR का प्रयास है, यही हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी का, हमारे साइंस डिपार्टमेंट्स का प्रयास है और यही हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। सर, आशीर्वाद और वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में कोरोना वायरस या कोविड-19 के खिलाफ बहुत खौफ है। ये खौफ कैसे दूर करा जाए? देखिए, लगातार प्रधानमंत्री जी भी बराबर बता रहे हैं लोगों को, मैंने भी लगातार बताया है और भी सभी संबंधित लोग देश भर में बताते रहते हैं। इतना बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया है। एक कॉलर ट्यून जो टेलीफोन में होती है जिसके 117 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, उसके माध्यम से दिन में 10-10 बार हम लोगों को याद दिलाते हैं कि अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं और 2 गज की दूरी को बनाकर रखते हैं और अपने हाथों को ठीक प्रकार से धोते रहते हैं साबुन से अच्छी तरीके से, गंदे हाथ कहीं इधर उधर छूने के बाद नाक में, मुंह में, आँख में नहीं लगाते हैं, तो ये जो बातें हैं हमने कहा ये असली सोशल वैक्सीन ये है। लोगों को बार बार हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बेसिक सावधानियां आप रखें तो कोरोना से किसी भी प्रकार का खौफ रखने की ज़रूरत नहीं। देखिए, कोरोना वायरस तेज़ी से एक दूसरे में स्प्रेड होता है, लेकिन इस मामले में कोरोना वायरस विनम्र है कि वो आपको बड़े सिंपल तरीक़ों से अपने आप को बचाने का वो मौका देता है। तो हम ज़्यादातर अपने घरों में रहें, जब आवश्यकता बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें, भीड़ भड़क्के को अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर में अपने बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखें, अपने घर में जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका खास ख्याल रखें, घर में गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। तो यही तो छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें लेना है, कोई खौफ करने की कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब तो धीरे धीरे ये काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले तो बहुत सारा स्टिग्मा था इस विषय के साथ जुड़ा हुआ, डॉक्टरों को लोग जो है दूसरी निगाह से देखते थे, नर्सिस को लोग दूसरी निगाह। अब तो लोग कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं, सार्वजनिक अभिनंदन कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनके लिए सारा देश तालियां बजा रहा है। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़मीनी आसमान का परिवर्तन हुआ है। सर, आप अकेले मंत्री थे जो लॉकडाउन 1 के दौरान भी अस्पतालों का दौरा करते रहे। आपको कभी डर लगा कोरोना वायरस से? आपने कोरोना का टेस्ट कराया, क्या हुआ, पॉजिटिव निकला, नेगेटिव निकला या डर लगा आपको? नहीं, मेरे को ना कभी डर लगा और ना ही जो है मैंने कोई कोरोना का टेस्ट कराया, ना ही मुझे कोई सिम्टम हुआ। मैं पूरे इस 4-5 महीने अगर रात में 12 बजे भी घर गया तो मैंने इतना ज़रूर किया कि मैंने 60 मिनट जो है अपने घर के अंदर सैर ज़रूर किया अपने स्वास्थ्य को ठीक प्रकार से रखने के लिए, और इससे ज़्यादा कोई और प्रिकॉशन ज़रूर रखी, मास्क को ठीक से बराबर पहना, जो प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी हैं वैज्ञानिक दृष्टि से वो सारी की सारी प्रिकॉशंस ली। दिल्ली के सारे अस्पताल जहाँ कोरोना का इलाज होता है वो उनको मैं अच्छी तरह से विज़िट कर चुका हूँ। एक सेंटर था जिसको मैं अच्छी तरह से देख नहीं पाया था, इसलिए मैंने आज आकर यहाँ पर विज़िट की है। मुझे ना कभी कोई डर लगा, मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ और मुझे पता है कि कर्म की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कर्म की सात्विकता जो है वो मुझको मजबूती देती है और भगवान का आशीर्वाद तो हम सबको है ही। तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन, पेशे से ENT सर्जन हैं, अकेले ऐसे डॉक्टर जिन्होंने भारत से पोलियो वायरस को भगाया और कहीं ना कहीं स्मॉल पॉक्स वाली वायरस को हिंदुस्तान से और दुनिया से भगाने में काम किया। अभी WHO में एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं। भारत और दुनिया से कोरोना को किस तरह से कोरोना से मुक्त किया जाए उसकी मुहिम में जुड़े हुए हैं। ये इंटरव्यू आपने भारत और दुनिया की सबसे बड़ी कोरोना केयर फैसिलिटी सरदार पटेल कोविड केयर फैसिलिटी, जहाँ पे 10,200 बेड हैं, उसके अंदर से देखा। नई दिल्ली से पल्लव बागला। Thank you.
थैंक यू सर।